So, friends, a very warm welcome to all respected valuers, engineers, architects, chartered accountants, real estate professionals, students, and valuation enthusiasts. We are delighted to introduce you to the Registered Valuers Club, an exclusively YouTube platform powered by Council of Engineers and Valuers (CEV Group), one of India's most trusted names in the professional valuation fraternity. In today's rapidly evolving financial and regulatory environment, valuation professionals play a pivotal role in maintaining economic transparency and corporate integrity. The Registered Valuers Club has been created with a powerful mission to educate, empower, and evaluate valuers across the nation. Here you will find expert discussions and interpretations on valuation standards, case studies, and practical insights from industry leaders, latest updates on IBBI, MCA, and other regulatory frameworks, guidelines on examination, eligibility, compliances, and career growth, field-based knowledge on land and building, plant and machinery, and securities or financial assets valuations. Webinars, interviews, frequently asked questions, and more educational resources. Our goal is to build a strong, informed, and united community of valuation professionals who uphold competence, ethics, and excellence in every assignment. Friends, whether you are preparing to become an IBBI registered valuer, looking to enhance your professional capabilities, or interested in staying ahead with current valuation practices, this channel is your learning hub. So make sure to subscribe, like, and share the knowledge and with others who aspire to grow in this profession. Together, let us strengthen the foundation of India's valuation ecosystem. Thank you and welcome to the Registered Valuers Club, where valuers rise, lead, and transform. Here we bring you expert guidance for IBBI registered valuer aspirants, latest regulatory updates, IBBI, MCA, RBI, and others, practical case studies with valuation methodologies, professional insights from industry leaders, training on land and building, plant and machinery, and securities or financial asset valuations, career support, frequently asked questions, and compliance knowledge. Our mission is to educate, uplift, and connect the valuation fraternity through high quality, authentic, and practical content. Whether you are a student or emerging valuer or an experienced professional, this channel is your gateway to continuous growth and excellence in valuation. So subscribe now and join India's fastest growing community of valuers. Together, let us build a stronger, compliant, and future-ready valuation ecosystem. The official name of the YouTube channel is Registered Valuers Club, powered by CEV Group for valuation professionals. नमस्कार और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के उस अल्टीमेट सबसे महत्वपूर्ण कानूनी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जिसके इर्द-गिर्द पूरी व्यवस्था घूमती है, और वो है कंपनी अधिनियम 2013, कंपनीज एक्ट 2013। सच कहूं तो यही वो बुनियाद है जिस पर कॉर्पोरेट मूल्यांकन का पूरा ढांचा खड़ा होता है। अब जरा इस बारे में सोचिए, जब किसी बड़े अरबों डॉलर के कॉर्पोरेट साम्राज्य का पुनर्गठन होता है या मान लीजिए उसे बंद किया जाता है, तो इस पूरे उथल-पुथल में निष्पक्षता कैसे आती है? मतलब ये कोई जादू तो है नहीं और ना ही ये कोई इत्तेफाक है। इसके पीछे एक बहुत ही सख्त, एकदम कड़क कानूनी ढांचा काम करता है। कंपनी अधिनियम 2013 के बिना एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक भी किसी बड़ी कॉर्पोरेट आपदा में बदल सकती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले वैल्यूअर का कानूनी ब्लूप्रिंट, फिर कंपनी अधिनियम 2013 की डिकोडिंग, उसके बाद हम भूमि और भवन,
प्लांट और मशीनरी और वित्तीय संपत्तियों के मूल्यांकन को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे नैतिकता और पेशेवर मानकों की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, वैल्यूअर का कानूनी ब्लूप्रिंट। देखिए, कॉर्पोरेट एसेट्स के मूल्यांकन का ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही क्रूशियल रोल पर टिका है, जिसे हम पंजीकृत वैल्यूअर यानी रजिस्टर्ड वैल्यूअर कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 247 ने ही इस बेहद शक्तिशाली भूमिका को बनाया है। 2017 के नियमों के तहत काम करने वाले ये वो प्रोफेशनल्स हैं जिन पर संपत्तियों का बिल्कुल सटीक, फेयर वैल्यू निकालने की भारी भरकम जिम्मेदारी होती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कंपनी अधिनियम 2013 को गहराई से समझना। आइए इन चैप्टर्स को थोड़ा डिकोड करते हैं, क्योंकि यही वो नियम है जो किसी भी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का भाग्य तय करते हैं। अध्याय 4 चैप्टर 4 में शेयर कैपिटल की बात है, अध्याय 15 चैप्टर 15 में अमेल्गमेशन या विलय की, अध्याय 17 चैप्टर 17 सीधा वैल्यूअर से जुड़ा है, और अध्याय 20 चैप्टर 20 वाइंडिंग अप यानी कंपनी के बंद होने से संबंधित है। एक वैल्यूअर को इन कानूनी पहलुओं की रग रग वाकिफ होना चाहिए, क्योंकि जब बड़ी कंपनियां टूटती हैं या जुड़ती हैं तो यही चैप्टर्स तय करते हैं कि पैसा किस दिशा में जाएगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, भूमि और भवन का मूल्यांकन। रियल एस्टेट यानी लैंड और बिल्डिंग्स का मूल्यांकन। देखिए, ये सिर्फ ईंट और पत्थर की कीमत लगाने का काम नहीं है। ये सब कुछ कंपनी अधिनियम 2013 की सख्त कानूनी सीमाओं के अंदर ही होना चाहिए। यहाँ पर धारा 192, 230 से 232 और 281 का ज्ञान होना बिल्कुल मस्ट है। सच कहूं तो इन धाराओं को समझे बिना किसी भी रियल एस्टेट का कानूनी रूप से मान्य वैल्यूएशन करना पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, प्लांट और मशीनरी का अंकलन। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात सामने आती है। वैल्यूअर्स को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 शेड्यूल 2 के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास और संपत्तियों की उम्र की गणना करनी होती है। आप यहाँ अंदाजा नहीं लगा सकते। अनुसूची 2 एकदम सख्त निर्देश देती है। ये किसी भी मनमाने अनुमान की गुंजाइश को पूरी तरह खत्म कर देती है, ताकि किसी भी मशीन का आज का भाव बिल्कुल सटीक निकले। बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की ओर, वित्तीय संपत्तियां और प्रतिभूतियां। फाइनेंशियल एसेट्स या सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन शायद सबसे ज्यादा उलझा हुआ काम है, क्योंकि ये चीजें अमूर्त होती हैं, इन्हें छुआ नहीं जा सकता। और यहाँ फिर से कंपनी अधिनियम 2013 का अध्याय 4 जो शेयर कैपिटल से जुड़ा है, सबसे बड़ा बॉस है। इसके साथ ही कॉर्पोरेट समझौतों को संभालने वाले अध्याय 15 का ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। इन बारीक कानूनी पहलुओं के बिना सिक्योरिटीज का सही वैल्यूएशन करना तो भूल ही जाइए। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट पर लाता है। वैल्यूअर्स को अक्सर एक नियामक भूल भलैया से गुजरना पड़ता है। अब कंपनी अधिनियम 2013 तो मुख्य दिशा सूचक या कंपस है ही, लेकिन उन्हें सेबी और फेमा के सख्त रूल्स को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। ये सिर्फ एक कानून रखने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि विदेशी मुद्रा के नियम, शेयर बाजार की गाइडलाइंस और हमारा कंपनी लॉ, ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा पजल है। इसी के साथ हमें इन दो कॉन्सेप्ट्स को भी समझना होगा। एक चलती फिरती मुनाफे वाली कंपनी का फेयर मार्केट वैल्यू और मजबूरी में बेची जा रही कंपनी के लिक्विडेशन वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क होता है, और कानून इस फर्क को बहुत बारीकी से देखता है। इसके अलावा इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक मूल्य और सिनर्जिस्टिक वैल्यू जैसी चीजों को समझना भी वैल्यूअर के लिए एकदम मस्ट है, ताकि कोई भी वैल्यूएशन कल को कोर्ट में जाकर खारिज ना हो जाए। और अब हम आते हैं अपने आखिरी छठे सेक्शन पर, नैतिकता और पेशेवर मानक। देखिए, सिर्फ तकनीकी चीजें जान लेना काफी नहीं है। 2017 के नियमों के तहत जो आदर्श आचार संहिता बनाई गई है, वो कमाल की है। इसमें आपकी पेशेवर क्षमता, आज़ादी, सख्त प्राइवेसी और हितों के टकराव से बचना, ये सब सिर्फ गाइडलाइंस नहीं है, ये सख्त कानूनी दायित्व हैं। गिफ्ट्स या मेहमान नवाजी से दूर रहना वैल्यूअर के लिए बहुत जरूरी है। यही वो इंसानियत और नैतिकता का फैक्टर है जो कंपनी अधिनियम 2013 के ब्लूप्रिंट को असल में काम करने लायक बनाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। कंपनी अधिनियम 2013 के इस विशाल और गहरे आर्थिक प्रभाव को देखते हुए, अगर कभी किसी वैल्यूएशन में कोई गड़बड़ होती है या उससे समझौता किया जाता है, तो असल में इसकी कीमत कौन चुकाता है? सच तो ये है कि इसका सीधा असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है,
और यही बात एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के कंधों पर पड़ी उस भारी भरकम जिम्मेदारी को साबित करती है। वो सिर्फ नंबर्स नहीं गिनते, वो हमारी इकोनॉमी का बैलेंस बनाए रखते हैं। सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के लिए इतना ही।